So very good morning all of you. The topic is you can say it's a very small but very important in all aspect, right? So I will show you. We will cover the introduction part, then viscosity grade and that is your unmodified bitumen and modified bitumen. Basically we will talk about the polymer modified bitumen, right? So recently in 2019 it has been revised one code IS 15462. So we have moved viscosity grade to performance grading. So what is the advantage that I am going to discuss, but first of all we should know what is the bitumen, right? So everybody know the bitumen, and bitumen every state is called different name, right? In Maharashtra it's called dambar, in Bihar it's called bitumen pitch, Bhopal I don't know what you call, Alcatra also we call it, right? So we have different name. So if you will see the worldwide, in USA they call it asphalt. So we are getting the information and taking the technology from the USA and European countries both, right? So we call it both bitumen as well as asphalt. So for us it's the same. So whatever the crude oil we have, how much bitumen we are getting? Earlier it was the waste, but what is the waste? Because it is not the waste, because we have to purchase. So anything we have to buy, that is not the waste, right? So we are buying, so this is not the waste. So based on the crude oil, the bitumen we are getting 1 to 90%. What about in India? Whatever the crude oil we have, almost 20 to 30% bitumen we are getting from the crude oil, right? So if you will see like yesterday lecture, emulsion, right? So how much emulsion? Emulsion is also coming from the bitumen. So how much emulsion and bitumen ratio is there? That is, if you will see the worldwide, USA, that is also 8%, and in India also we have achieved 8%. So we are similar to the USA, right, based on the consumption. So again you will see that one point I forgot. Here we have 4.9 bitumen, 4.9, production and consumption is 6.7 million metric ton. It means we are buying the bitumen, right? We are importing, right? So again our mind is different. Okay, only 30 to 40% we are buying. Basically 84% crude oil we are buying, importing from the world, different countries. So almost I can say 100% bitumen is from the not Indian source, the other source, right? So if your source is changing, your bitumen quality will change. Whatever the code we have, that is the not the new one, right? It's a old, almost 10 years, 15 years, 5 years old code we have. Now the material has changed, right? And the price, if you will see, VG 10, 30 and 40, there is a difference, right? So where the bitumen we are using, right? We are using in the cold mix, that yesterday class already has been discussed, half war mix asphalt. This mix is heated but less than 100 degrees Celsius. In cold mix asphalt there is a problem in the achieving the density for thicker pavement. But for half war mix asphalt it is similar to the your hot mix asphalt. And warm mix asphalt is, it is more than 100 degrees Celsius but less than 140, because after 140 it's a your hot mix asphalt. If you will see in the code for VG10 it's a 140, right? So that is the warm mix asphalt. Why we are not moving to the warm mix asphalt? Because we are using additive part only. We have the foaming technology similar to the emulsion, right? And I will say you that in USA 100% they have shifted to the warm mix asphalt. 100%. They are not using hot mix asphalt. Basically it's a part of the hot mix asphalt, but they have converted. They have reduced 30 degrees Celsius, 20 to 30 degrees Celsius less. So reducing 30 and 40 degrees Celsius,
the emission is going to save 30 to 40%, right? And your product will be same, density will be same, everything will be same. What is the principle? Principle is that they are reducing the frictional force, they are reducing the your viscosity, the concept, right? Basically we have to coat the aggregate with the bitumen, right? Coating thickness should be same, right? So that I will not discuss. So again, the cost point of view, if you will see open grade premix carpet, the bitumen cost is 2.84 lakh, right? Aggregate 1.25, right? So almost 37%. So we assume 30 to 40% cost is your with respect to total cost. Bitumen cost is 30 to 40%. So it's huge amount, right? If you are using the emulsion, cost is more, almost 50%, right? 40 to 50% we assume, right? So we have two parameters, emission and cost. Now we are using emulsion only mainly in PMGSY road, not in NH or a state highway, right? And mainly it is very successful for repair and maintenance part, right? So whatever the technology we have, first we have to understand that which technology we required. One technology will not universal for all the problem, right? So this is the again one micro surfacing, right? The cost is less, but that is for the your maintenance part, periodic maintenance. The thickness is almost 6 to 8 mm only, but they can give you the in India point of view 3 to 4 years life, right? But if you will see the worldwide data, 7 years, but they do the maintenance when the pavement condition is good condition. Here what is we will think on the good, implementation part it will be bad or fair. We don't do the maintenance at the fair part, right? That we have to change our mind. So we have bitumen, unmodified bitumen, that is not polymer like BG10, 20, 30, 40, we call it the unmodified binder. And we have modified binder. Modified binder we can have crumb rubber, natural rubber, and we have polymer modified bitumen, right? So the classification, again we get confused like type of road, we call it flexible and rigid pavement. First we have to ask classification based on what, right? Classification based on what? Like based on the rigidity we have the flexible and rigid. Based on the material we have different classification. So based on the you have different classification, right? So we have achieving system. In India I don't have data, but in US I have the data. There where the expert we can say that this bitumen is okay or not, right? Like most of the time in the field we see the mix, we say that okay, without checking we have the experience, we can say this mix is okay, right? And penetration grading system still we are following, but from the code since 2006 it has been removed, right? We have to check the penetration data, but for grading point of view, viscosity penetration grading has been removed, right? So 80-100 that was the BG10, right? That we call it. 60-70 it's a BG30. So what was the disadvantage that I will talk? I will not go in detail. Like the penetration test we conduct at 25 degrees Celsius. Why? Anyone can say? Why 25 degrees Celsius? Because it is written in the code. आप कोई भी बोल सकते हैं. Because आप जब देखिए, अच्छा मैं भूल गया हिंदी में मुझे बोलना था, कुछ लोग बोले थे कि हिंदी में बोलना है. तो अभी जो एवरेज टेम्परेचर है अपने इंडिया का, एनुअल एवरेज टेम्परेचर वो 26, 25, 27 है. किसी का भी ले लीजिएगा. यूएसए का भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट? सो इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे लिए कि चलो भाई ऑन एन एवरेज पे हम 25 डिग्री सेल्सियस पे टेस्ट करेंगे.
लेकिन सेम बिटुमिन का क्या हुआ कि अगर आप 60 पे टेस्ट करते हैं तो उसका अच्छा भी है, खराब भी आता है, तो वो डिसएडवांटेज था। अपना रोड जो रटिंग के लिए जो टूटता है वो हाईयर टेम्परेचर पे टूटता है, फटीग के लिए लोअर टेम्परेचर पे 20 पे 10 पे टूटता है, क्रैक होता है। तो उसके कारण ये सुटेबल नहीं है, डिसएडवांटेज हो गया उसका टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी का, राइट। सो वी हैव तब मूव किया विस्कोसिटी ग्रेडिंग पे। ये यूएस में कब आया? 1980, राइट। इंडिया में कब आया? 2006, राइट। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या था? इसका एडवांटेज ये है कि 60 डिग्री पे करते हैं। आप 60 डिग्री पे क्यों करते हैं? क्योंकि पेमेंट का टेम्परेचर जो हम मानते हैं वो 60 डिग्री होता है, राइट। समर में 60 डिग्री पहुंच जाता है मैक्सिमम पेमेंट टेम्परेचर, तो इसीलिए हम वो 60 डिग्री पे करते हैं, राइट। तो वो 60 डिग्री पे करते हैं। तो अब आया कि ये 10, 20, 30, 40 क्या है? तो बेसिकली इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं आजकल, उसमें पॉलीमर मिला दिए, BG40 बन गया, पेनिट्रेशन सॉफ्टनिंग सारा सेटिस्फाई कर गया। बेसिकली BG10, 20, 30 जो है एयर ब्लोइंग के थ्रू होना चाहिए, एजिंग होना चाहिए उसका, राइट। एयर ब्लोइंग के थ्रू होना चाहिए, उसमें कुछ एडिटिव्स हम नहीं मिला सकते हैं, राइट। तो उसको हम कैसे जानेंगे? अपने पास तो है ही नहीं कुछ टेक्नोलॉजी, राइट। कैसे पकड़ेंगे? वो तो आपको क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया बेस्ड ऑन द ISO स्टैंडर्ड, राइट। तो BG10, 20, 30, 40 का है कि जहाँ पे जो मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, यहाँ पे एयर टेम्परेचर है, मैक्सिमम 7 डेज एयर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, अगर 30 से लेस है तो आपका जाएगा BG10, 45 से एबव है तो जाएगा BG40, राइट। तो आपके भोपाल का मैं डाटा देख रहा था तो ऑलमोस्ट 42 के आसपास है इस ईयर का, राइट। तो ऑलमोस्ट 45 मान के चले सेफ डायरेक्शन में, राइट। तो BG30 यूज करते हैं हम, हाँ, क्योंकि प्राइस पॉइंट भी है, BG30 का थोड़ा सा प्राइस कम है, BG40 का ज़्यादा है। BG30 इजीली अवेलेबल है, BG40 इजीली अवेलेबल नहीं है, राइट। तो बहुत सारा कंसर्न है, राइट। तो ये आपको देखना है कि पेमेंट का टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर आप तो टेम्परेचर गन से मेजर कर ही सकते हैं, राइट। आराम से कर सकते हैं, वो तो आइडिया आपका हो ही जाएगा कौन सा बिटुमिन आपके लिए चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे एयर टेम्परेचर है, मुझे चाहिए पेमेंट टेम्परेचर, मुझे पेमेंट बनाना है, राइट। तो ये टेस्टिंग पार्ट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। सो एक है रोटेशनल विस्कोमीटर, क्यों मैं ऐड किया हूँ क्योंकि कल के इनोग्रेशन के समय बोल रहे थे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट आप लोग खरीद रहे हैं, राइट। तो एक है रोटेशनल विस्कोमीटर, राइट। तो इससे हम क्या करते हैं, मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपका तो बाइंडर चेंज हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर, लेइंग टेम्परेचर? तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका कॉस्ट अराउंड 2 लाख से 10 लाख के आसपास है, वेरी करता है किस टाइप का आप लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो विस्कोसिटी है, जिस टेम्परेचर पे 170 सेंटीपॉइज है वो आपका मिक्सिंग टेम्परेचर हो गया, 280 है सेंटीपॉइज तो वो कंपैक्शन टेम्परेचर हो गया। आप तो ऐसा होगा नहीं कि आपका बाइंडर सबका एक ही टेम्परेचर है। अगर 5 डिग्री 10 डिग्री कम आ गया या ज़्यादा आ गया तो आपका तो कंपैक्शन तो वेरी करेगा, पक्का करेगा, कॉस्ट भी गया। अगर ज़्यादा आ गया तो डेंसिटी अचीव नहीं होगा, आप क्या करेंगे, रोलर 2 पास 3 पास और करेंगे, जो स्टैंडर्ड में लिखा है उसको भूलेंगे, आपको तो डेंसिटी अचीव करना है। तो जब भी आप रिपोर्ट मांगे तो उससे बोल दे कि भाई आपको मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर के साथ दो मुझे रिपोर्ट, राइट। ये इसका टेस्टिंग पार्ट थोड़ा थोड़ा बता दें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक सेंट्रल से वो आया था तो उन्होंने बड़ा गहरा ऑडिट लिया था इस पे बिटुमेन पे, और उसका यही था कि आपने गमन किया है। अच्छा, मतलब इसमें पार्ट का थोड़ा थोड़ा सिंपल, जिसमें हम लोग थोड़ा ये इसमें सिंपल है। एक थर्मोस्टेट चैम्बर होता है, उसमें हम सैंपल मोल्ड में रख के सैंपल रखते हैं, और ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े न्यूटोनियन फ्लो, नॉन न्यूटोनियन फ्लो।
तो हाइयर टेम्परेचर पे क्या है कि बिटुमेन जो है न्यूटोनियन है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। आपका आरपीएम बढ़ा भी देंगे तो आपका विस्कोसिटी सेम होगा, तो वो हो गया न्यूटोनियन, राइट। तो आप 20 आरपीएम पे घुमाते हैं और ऑटोमेटिकली रीडिंग आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, राइट। इस पे डायरेक्ट आपका विस्कोसिटी आ जाएगा। ये विजिबल नहीं है, मेरे लैपटॉप में विजिबल है, ठीक है। तो डायरेक्ट देता है, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका विस्कोसिटी देता है इस पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 135 पे ले लेंगे विस्कोसिटी, मान लीजिए आ गया 500, 150 पे ले लिए, आ गया मान लीजिए 300, राइट। 165 पे ले लिए, मान लीजिए आ गया 100, वो लीनियर ही आएगा ऑलमोस्ट, राइट। आप देखेंगे 3 पे तो आ गया। अब आप देखेंगे किस टेम्परेचर पे विस्कोसिटी 280 है, जैसे यहाँ देख लीजिए किस टेम्परेचर पे आपका 280 है, राइट, वो आपका कंपैक्शन टेम्परेचर हो जाएगा। 280 सेंटीपॉइज, इफ आई विल गो इन द पास्कल सेकेंड, देन 0.28 प्लस माइनस 0.003, राइट। ये सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा, सब लोग समझ जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इस लेक्चर में इम्पोर्टेंस बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये मिक्स में क्या है कि अगर ज़्यादा हॉट है तब तो इस टाइप का आपका हो जाएगा, राइट। अगर ज़्यादा कोल्ड हो गया मिक्स आपका, वो कॉम्पैक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो बिटुमेन का प्रॉपर्टी है आपके पास, तो राइट मिक्सिंग एंड राइट कंपैक्शन टेम्परेचर तो चाहिए, नहीं तो आपका मिक्स गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपका तो जीएमएम दिया जाता है, जो जीएमएम के रिस्पेक्ट में आपको डेंसिटी 92 या 93% लाना है, राइट। और फील्ड वाले तो आपको ला के दे देंगे। बेसिकली हम जीएमएम के रिस्पेक्ट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको एयर वॉइड चाहिए, राइट। स्टार्टिंग का एयर वॉइड 7% 8% होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में एयर वॉइड 4% दे दिए, 3% कर दिए, तो वो तो पेमेंट अर्ली क्रैक होगा ही होगा, राइट, पक्का होगा। अगर आप डेंसिटी मान लीजिए कम, एयर वॉइड 10% 12% रखे, तो ऑब्वियस बात है रटिंग तो होगा ही होगा, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ देते हैं। Softening point, again I will not go in details, right. This test we conduct and this is ये बहुत सिंपल टेस्ट है, राइट, सारे लोग जानते होंगे, अगर डाउट है तो पूछ लें, राइट। तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाता है। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो सॉफ्टनिंग पॉइंट आप करते हैं तो उससे आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा, इनिशियल आइडिया आ जाएगा आपको, राइट। जैसे VG10 का है, सॉफ्टनिंग पॉइंट मिनिमम 40 आना चाहिए, राइट। VG40 का है, सॉफ्टनिंग पॉइंट 50 आना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे मेरा यही मानना है कि रेंज होना चाहिए। आप मिनिमम 40 दे दिया, लेकिन आप VG10 का देखिएगा तो 45 46 आता है, तो आप क्या उसको VG30 मानिएगा, क्योंकि VG30 का 47 से होना चाहिए ऊपर, राइट, या VG20 45 से ऊपर। तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे लैकिंग है। डक्टिलिटी छोड़ते हैं। तो पेनिट्रेशन यहाँ पे तो हम शॉर्ट टर्म एज बाइंडर पे करते हैं और विस्कोसिटी रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं, कि ताकि कभी कभी क्या होता है प्लांट में वो हीट कर देते हैं 5 आवर्स 10 आवर्स, कुछ हीट करके रख लेते हैं। प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ, बिटुमेन हीट हो रहा है, एज्ड होते ही जाता है और टेम्परेचर 163 रहता है, 160 होता है, राइट। आप 5 घंटे तक 6 घंटे तक अगर उसको आप गर्म करते हैं तो पक्का वो शॉर्ट टर्म एज्ड हो जाएगा। जैसे थिन फिल्म ओवन टेस्ट था पहले, उसमें था कि हम एक प्लेट में रखते हैं बिटुमेन 50 ग्राम और उसको हम रोटेट करते हैं 5 आवर्स तक 163 डिग्री सेल्सियस, तो वो शॉर्ट टर्म एज्ड हो जाता है। अब आ गया RTFO, रोलिंग थिन फिल्म ओवन टेस्ट, उसमें ओनली 85 मिनट्स लगता है, लेकिन टेम्परेचर 163 है, उसमें हम एयर फ्लो करते हैं 4000 ml पर लीटर, राइट। ये है आपका। तो
तो इससे फ़ायदा क्या है, कभी कभी जो एडिटिव्स लोग मिला देते हैं या कुछ वोलेटाइल पार्टिकल्स मिला देते हैं, तो इससे ये वो भी पकड़ा जाता है, राइट। अगर लॉस हो गया पॉइंट, कोड के हिसाब से 1% से कम होना चाहिए, लेकिन 0.5 से कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मतलब कुछ वोलाटाइल पार्टिकल्स है प्रेजेंस, राइट, कुछ है एडिटिव्स, राइट। तो उससे पता चल जाएगा आपको वो बिटुमेन यूज करना नहीं है। और ये यहाँ पे जितने भी लोग सैंपल भेजते हैं, एक सैंपल एक कंटेनर भेजते हैं। अगर आपका लॉट साइज अप टू 50 है तो कम से कम 3 रैंडम कंटेनर से आपको सैंपल भेजना है जॉब मिक्स डिज़ाइन या कोई भी टेस्टिंग के लिए। कोई भी नहीं भेजता, राइट। अब मान लीजिए लॉट साइज अलग अलग है, BG10 का एग्जांपल लेते हैं। एक लॉट साइज से आ गया 40, एक से आ गया 42, एक से आ गया 46। अगर आप देखिएगा इसका ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो 40, 42 और 46 का एवरेज है -0.6 इंटू आर, यहाँ पे रेंज हो गया 40 से 46। आप देखिएगा ये फेल कर रहा है, 39 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब BG10 तो हुआ ही नहीं, राइट। ये कोड में काफ़ी पहले से दिया हुआ है, कोई लोग ध्यान नहीं देते, राइट। तो ये भी चेक करना ज़रूरी है, राइट, कि आपका लॉट साइज जो भेज रहे हैं, लॉट साइज जितना भी है, आप बेस्ड ऑन द लॉट साइज आपको कंटेनर भेजना है। एक भेजिएगा पता नहीं गलती कहाँ कर रहे हैं, छोटे छोटे हम गलती करते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंस रहते हैं मैं तो अच्छा किया हूँ, राइट। नाउ कमिंग टू द पेनिट्रेशन एंड विस्कोसिटी ग्रेड, वो दोनों जो है इम्पेरिकल है, राइट। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल आपका PG स्पेसिफिकेशन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग। Again, I will tell you, it's not the Indian development, it's a USA development, right? Most of the things we have taken from the USA and we have validated, right? Based on the Indian condition. So what is this performance grading जो है बात करता है कि पेमेंट का मैक्सिमम टेम्परेचर और पेमेंट का लोअर टेम्परेचर। ये तो अच्छी बात है, जो पेमेंट का जो सर्विस टेम्परेचर है उस पर हम बात कर रहे हैं। अगर उस पर पास हो गया तो ऑब्वियस बात है वो बिटुमेन तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें पेमेंट का बात करते हैं, पेमेंट का टेम्परेचर का बात करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर वही सेम फंडा, 7 days मैक्सिमम एयर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, राइट, जो भी टेम्परेचर है। अब अपने पास डाटा नहीं है, US वाले ने मोर देन 1500 उन्होंने सेक्शन लिए और टेम्परेचर कलेक्ट किए, उसके वर्ल्ड वाइज, नॉट वर्ल्ड वाइज, USA एंड कनाडा। देन दी कम अप विद द सम इक्वेशन, right, and then they have modifying and it is almost valid for the Indian condition also, but based on the traffic, right. If traffic is more or less, then it will be changed. Water level is different, it will change, right. So that I will talk later. So what we have adopted कि polymer modified bitumen 64-10, मतलब अगर ये आपका बिटुमेन है 64-10, मतलब आपका पेमेंट का टेम्परेचर 64 मैक्सिमम है और -10 मिनिमम है, तो आपका पक्का कुछ नहीं होने वाला, सही काम करेगा ये बिटुमेन, राइट, ये गारंटी है। कुछ इक्वेशन है जो एयर टेम्परेचर और पेमेंट टेम्परेचर का देखा गया तो 80-90% जगह सही पाया गया, 10-20% जगह वो गलत पाया गया, ठीक है। अब मापते कैसे हैं? कॉन्सेप्ट सेम है। मॉडुलस आप लोग जानते हैं, डिज़ाइन करते हैं रेजिलेंट मॉडुलस, जैसे सर बता रहे थे CBR निकालते हैं। CBR से हम क्या निकालते हैं? रेजिलेंट मॉडुलस। डायरेक्टली रेजिलेंट मॉडुलस नहीं निकाल पाते, इसलिए CBR से इक्वेशन दिया हुआ है, हम CBR से रेजिलेंट मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी मॉडुलस है, यहाँ भी मॉडुलस है। तो कॉम्प्लेक्स शेयर मॉडुलस हम निकालते हैं, फेज एंगल, 2 पैरामीटर्स है, राइट। तो लोड अप्लाई करेंगे और कुछ स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के साइनसोइडल लोडिंग, राइट, वी हैव टू अप्लाई द साइनसोइडल लोडिंग। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के
बीच में जो गैप है वो आपका फेज एंगल होता है, राइट। अगर फेज एंगल 0 है तो प्योरली इलास्टिक है, राइट। तो अपने इंडिया में हम लोग दो चीज़ का बात करते हैं, फटिग एंड रटिंग, राइट। we don't much care about the workability and thermal cracking. Thermal cracking, I accept, we don't have the problem with the thermal cracking in most of the part of in India, but this two, fatigue, rutting and the handling, we have to, हम लोग बिटुमिन पे ही चेक कर ले पहले, हम लोग बिटुमिन पे पहले चेक कर ले, क्योंकि एग्रीगेट का तो प्रॉपर्टी चेंज ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन बिटुमिन का काफ़ी इजीली हम चेंज कर सकते हैं, इमल्सन का काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, वो हम जैसे डिमांड करेंगे वैसे आपको सप्लाई हो जाएगा आराम से, राइट। सो आई विल नॉट गो इन डिटेल, अगर आपको कुछ डाउट पूछना है तो मैं बता दूंगा। और एक है प्रेशर एजिंग वेसल, राइट, पीएबी। जैसे 10 साल 20 साल के बाद आप बोलते हैं कि जो मिक्स है, बिटुमिनस मिक्स है, वो ख़राब हो जाता है, तो उसका भी टेस्टिंग हम लोग लैब में करते हैं कि 20 इयर्स के बाद क्या प्रॉपर्टी है उस मिक्स बिटुमिनस मिक्स के से हम लोग बाइंडर रिकवर करते हैं और उसको देखते हैं किस टाइप का बाइंडर है और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी जगह यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। तो क्रीप एंड रिकवरी, इसमें क्या है कि रेजिलेंट मॉडुलस में ऑलमोस्ट सेम देखते हैं, उसमें नॉन रिकवरेबल पार्ट एक है, एक रिकवरेबल पार्ट है। लोड अप्लाई करेंगे, लोड हटा देंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट रिकवर होगा, कुछ पार्ट रिकवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो पार्ट रिकवर नहीं हुआ, नॉन रिकवरेबल, राइट। तो अगेन आई विल नॉट गो इन डिटेल। So we have in IS 15462, we have 64 minus 10, 70 minus 10, 76 minus 10, 82 minus 10, 76 minus 22. So VG40 is almost 76 to 82. आपका पेमेंट टेम्परेचर जो VG40 का आता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, वो 76 से 82 के बीच में आ जाता है। VG30 का 70 से 76 के बीच में आता है, राइट। तो आपके पास डाटा है, आपके पास टेम्परेचर है, पेमेंट का टेम्परेचर है, आप बता दीजिए कि ये मुझे क्राइटेरिया, मुझे इस टाइप का बाइंडर चाहिए, ये तो काफ़ी इजी है, राइट। अगेन दिस विल बी द मोर डेप्थ, आई विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। अब हम क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। जो रेगुलर क्रूड ऑयल है, जनरली आप देखिएगा ये आपका देगा मैक्सिमम 70 माइनस 16 तक दे देगा, राइट। अगर आपका हैवी है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी तो क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा सही क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा, राइट। ओके, criteria is same. So in viscosity grading we were testing at 60 and we were checking at the different pavement temperature. Here in performance grading हम क्या करते हैं, different temperature एक grading, right। जो आप अपने कोड में मॉर्थ में दिया हुआ है, आपका ये टेम्परेचर दिया हुआ है कि ये आपको फॉलो करना है। BG 10 है तो बिटुमिन टेम्परेचर 140 to 160 होना चाहिए, राइट। मिक्स टेम्परेचर 140 to 160, राइट। इसलिए हम बोले कि वार्म मिक्स एस्फाल्ट में 140 से लेस होगा, अगर 140 से ज़्यादा होगा तो ये फिर BG 10 के साथ हॉट मिक्स एस्फाल्ट हो जाएगा। लेकिन हम पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन का बात करते हैं तो उस समय हम मिक्सिंग एंड कंपैक्शन टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं रोटेशनल विस्कोमीटर से। तो हम क्या करते हैं कि जो आपका सप्लायर है वही बोलता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होना चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम फाइंड आउट करते हैं। आई विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। अब यहाँ पे बात, ये एक पॉइंट और है कि पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन कहाँ यूज करेंगे, राइट। एक तो है कि आपका ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, MS से ज़्यादा है तो आप पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन पे जाएंगे, शिफ्ट होंगे। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम और लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है then also you should go move to the polymer modified bitumen, right,
बिकॉज पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन का रेंज ज़्यादा होता है कंपेयर विद द अनमॉडिफाइड बिटुमेन। और दूसरी बात यह है कि जैसे टोल प्लाजा वगैरह ट्रैफिक अगर आपका मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, व्हीकल का स्पीड, एक में 20 किलोमीटर पर आवर है और एक ऑलमोस्ट स्टैंडिंग है, कौन डैमेज करेगा ज़्यादा? पेमेंट को कौन डैमेज ज़्यादा करेगा? वही तो अंडरस्टैंडिंग है, जो स्टैंडिंग है वो करेगा। तभी तो टोल प्लाजा पे हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है टोल प्लाजा पे बनाना, हम तो कैरीज में बना दे अच्छा, राइट। तो जब स्टैंडिंग ट्रैफिक है तो वो डैमेज ज़्यादा करती है, टेंशन ज़्यादा देर तक रहेगा तो आप बीमार तो पड़ेंगे ही, राइट। थोड़ा देर के लिए तो इग्नोर हो जाएगा, राइट। तो जब 70 किलोमीटर पर आवर है तब ये पीजी ग्रेडिंग है। अगर आपका ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है या स्लो मूविंग व्हीकल है तो एक ग्रेड ज़्यादा लेना है, राइट। अगर स्टैंडिंग ट्रैफिक है तो हो सके ट्रैफिक वॉल्यूम के अनुसार 2 ग्रेड ऊपर लेना पड़े, राइट। लेकिन पीएमजीएसवाई में ये नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल एज्यूम कर सकते हैं। ये मैं बोल रहा था जीएमएम के बारे में, राइट। तो ये मेथड है ऑलमोस्ट पीएमजीएसवाई में। आई एम श्योर दैट नो वन इज, आई कैन नॉट से नो वन, मैक्सिमम इज नॉट फाइंडिंग द करेक्ट जीएमएम। आप करेक्ट जीएमएम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट एयर वॉइड फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट एयर वॉइड फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपका पेमेंट फेल होगा ही होगा, या तो रटिंग से होगा नहीं तो फटिक से होगा, वन ऑफ द रीजन, राइट। सो in the mix also we finding the rutting and the fatigue, right. So thank you.